Hello everyone, so today we will discuss about ZENER diode. Firstly, we should learn about the difference between ZENER and avalanche breakdown. First point explains that in ZENER breakdown case, when the reverse bias voltage increases, high electric field across the junction will be created, and this would result a large amount of charge carrier will release, and resulting a large amount of current will flow. But in avalanche breakdown, when the reverse bias voltage increases, say minority carrier electron will attain sufficient energy so as to collide with bounded electron, and when the bounded electron is detached from the atom, it also acquires sufficient energy and collide with another bounded electron. Then a chain reaction is set up in avalanche breakdown. Second point, diodes are heavily doped in ZENER breakdown, but they are lightly doped in avalanche breakdown. Third point, ZENER breakdown is observed when the voltage is less than 5 volt, but in case of avalanche breakdown it is more than 5 volt as shown in the graph. So ZENER breakdown is generally less than 5 volt, but avalanche breakdown is more than 5 volt, and both processes simultaneously occur in one diode. Fourth point, in ZENER breakdown case, when the temperature is increases, thermal energy is also helpful to break the covalent bond. That's why ZENER breakdown voltage decreases. But in case of avalanche breakdown, when the temperature increases, avalanche breakdown will increase because due to lattice vibration, probability of collision is decreases. That's why we apply more energy to break the covalent bond. Next is ZENER diode, and this is the symbol of ZENER diode. This side is P and this side is N. In a forward bias situation, ZENER diode behave as a simple PN junction diode, and this graph show is when it is in reverse bias. And this point is breakdown point, and IZK is the minimum value of current passes through ZENER diode when it enters in breakdown region, and IZM is the maximum value of current passes through the ZENER diode when it is in breakdown region. If the current is not in this range, ZENER diode is in off state or it acts as an open circuit. So next is this diagram shows that ZENER diode acts as an voltage regulator. So firstly, इनपुट वोल्टेज जो हमारी और जो सीरीज रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इसको इस वे में सेलेक्ट करना है जिससे हमारा ZENER डायोड हमेशा ब्रेकडाउन रीजन में रहे, और जो वोल्टेज होगी ZENER डायोड के अबाउट हमेशा फिक्स रहेगी, उसको मान लेंगे हम VZ। ZENER डायोड और लोड रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है यहाँ पे, तो जितनी वोल्टेज ZENER डायोड के अबाउट होगी उतनी वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के अबाउट भी होगी। इसका मतलब अगर ZENER डायोड के अबाउट VZ वोल्टेज है तो लोड रेजिस्टेंस के अबाउट भी VZ वोल्टेज रहेगी हमेशा। तो यहाँ पे दो पॉसिबल केस बनते हैं ZENER डायोड एक्ट एज वोल्टेज रेगुलेटर को डिस्कस करने के। फर्स्टली, जब हम इनपुट वोल्टेज को वेरी करें। सेकंड केस, जब हम लोड रेजिस्टेंस को वेरी करें। सो फर्स्ट केस, इफ इनपुट वोल्टेज इज फिक्स एंड लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। सो इस केस में हमने इनपुट वोल्टेज को तो फिक्स किया और लोड रेजिस्टेंस को वेरी किया। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की जो रेंज है वो RL मिनिमम से लेके RL मैक्सिमम है। अब लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज फिक्स है, इसका मतलब रेजिस्टेंस R हमारा फिक्स है और वोल्टेज अक्रॉस ZENER डायोड जो हमेशा फिक्स रहेगी, जिससे हम यहाँ पे I की वैल्यू निकाल लेंगे, जो I करंट जो रेजिस्टेंस R से फ्लो हो रहा है। तो कैपिटल I इज इक्वल टू V इनपुट वोल्टेज माइनस VZ ZENER डायोड वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस R जो कि सीरियल रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो कैपिटल I की वैल्यू यहाँ से कांस्टेंट आएगी क्योंकि इनपुट वोल्टेज भी फिक्स है, वोल्टेज अक्रॉस ZENEर डायोड भी फिक्स है और रेजिस्टेंस जो कि फिक्स है। इससे यहाँ से जो करंट है वो हमारा फिक्स कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ से। तो कैपिटल I की वैल्यू किसके इक्वल होगी, IZ जो कि ZENEर करंट है प्लस में IL जो कि लोड रेजिस्टेंस करंट है यहाँ पे। तो यहाँ से हम RL मिनिमम की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आएगी, वोल्टेज अक्रॉस ZENEर डायोड या फिर वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, एक ही बात है। तो RL मिनिमम इज इक्वल टू VZ अपॉन में IL मैक्सिमम। जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। इफ IL इज इक्वल टू IL मैक्स देन IZ इज इक्वल टू IZ के मीन्स जब लोड रेजिस्टेंस आपका मैक्सिमम होगा तब ZENEर करंट मिनिमम होगा। जैसे
जब I इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल है। इसका मतलब जब लोड करंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो जीनर करंट मिनिमम होगा, क्योंकि जो टोटल आई है वो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है। इसके बाद अगर वी आई की वैल्यू निकालेंगे, वी आई कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, जो जीनर डायोड के अबाउट है। तो वी आई इज इक्वल टू आर एल मिनिमम इंटू में वी अपॉन में आर प्लस आर एल। तो वी आई इज इक्वल टू आर एल मिनिमम वी अपॉन में आर प्लस आर एल मिनिमम इज इक्वल टू वी जेड, जो कि जीनर डायोड की वोल्टेज है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये इसके यहाँ से हम आर एल मिनिमम की वैल्यू निकाल लेंगे। इस रिलेशन से आर एल मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आर इंटू में वी जेड अपॉन में वी माइनस वी जेड। सिमिलरली यहाँ से हम आर एल मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, आर एल मैक्सिमम इज इक्वल टू वी जेड, जो कि कांस्टेंट वोल्टेज है अबाउट लोड रेजिस्टेंस अपॉन में आई एल मिनिमम। जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा। तो जब आई एल की वैल्यू आई एल मिनिमम होगी, मतलब जब लोड रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तब जीनर करंट मैक्सिमम होगा। तो आई एल मिनिमम इज इक्वल टू कैपिटल आई, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस आई जेड एम, जो कि मैक्सिमम करंट है जीनर डायोड के अबाउट। सेकंड केस, इफ लोड रेजिस्टेंस इज फिक्स एंड इनपुट वोल्टेज इज वेरिएबल। इट मीन्स इनपुट वोल्टेज को यहाँ पे वेरी किया और लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है। लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है और लोड रेजिस्टेंस वोल्टेज पहले ही फिक्स थी। इट मीन्स जो आई एल की वैल्यू है, आई एल इज इक्वल टू वी जेड अपॉन में आर एल, वो भी कॉन्स्टेंट होगा। तो कैपिटल आई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। आई एल यहाँ पे फिक्स हो गया। इट मीन्स जितना चेंज कैपिटल आई की वैल्यू में होगा उतना चेंज आई जेड की वैल्यू में होगा। यहाँ पे अगर करंट इंक्रीज होता है तो जीनर करंट भी इंक्रीज होगा, अगर टोटल करंट डिक्रीज होता है तो जीनर करंट भी यहाँ पे डिक्रीज होगा। इट मीन्स यहाँ पे जब इनपुट वोल्टेज अगर डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस आर सेम अमाउंट ऑफ चेंजेस यहाँ पे भी होंगे। तो यहाँ से अब वी आई की वैल्यू निकालेंगे। वी आई की वैल्यू किस कौन सी वैल्यू है, ये जीनर डायोड के अबाउट। तो वी आई इज इक्वल टू वी मिनिमम, स्टार्टिंग हमने जो रेंज है इनपुट वोल्टेज की वो वी मिनिमम माननी है। तो वी मिनिमम इंटू में आर एल अपॉन में आर प्लस आर एल इज इक्वल टू वी जेड, जो कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी हमेशा। अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू वी मैक्स मान लेते हैं तो वी मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स, यानी कि जो करंट पास हो रहा है रेजिस्टेंस आर में से, इंटू में आर प्लस में वी जेड, जो कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी रहेगी हमेशा। तो यहाँ से आई मैक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आई मैक्स इज इक्वल टू आई जेड एम, जो कि मैक्सिमम करंट होगा जीनर डायोड से, प्लस में आई एल, जो कि एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। इस सिचुएशन के अंदर अगर इनपुट वोल्टेज वेरी होती है तो या तो चेंज रेजिस्टेंस आर में होगा या फिर चेंज जीनर डायोड के अबाउट होगा, लेकिन वोल्टेज फिक्स रहेगी जीनर डायोड के अबाउट, सिर्फ करंट चेंज हो सकता है। अगर वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज होगी तो वही सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस आर के अबाउट।